Hello guys, welcome to our friends. In this video lecture we are talking about that very most important phenomena is that evolution and natural selection. So how do species are changed by the time we are discussing in this video lecture. So we know about that adaptation is one type of the phenomena which is useful for that survival in that particular habitat. So in this video lecture we are focusing on that the first criteria, how variation amongst the same species can drive the natural selection. Okay, and second one is that to relate the natural selection with the evolution, and the third one is what, list and describe the examples of the evolution by natural selection. So first of all, the Charles Darwin, which is the father of evolution. Okay, so we know about that he is the famous theory of the evolution, which is suggesting that the organism that survive are those that adapt best to the environment. Okay, तो जो भी organism अच्छे से एडेप्टेशन अपना लेगा वो ही उस एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर पाएगा, विच इज़ कॉल्ड द सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट. टॉकिंग अबाउट दैट डार्विन्स नोटिस्ड. ओके, डार्विन ने क्या नोटिस किया था? सो फर्स्ट उन्होंने नोटिस किया कि देर वॉज अ वेरिएशन बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीसीज. ओके, उन्होंने ये भी नोटिस किया कि सेम स्पीसीज़ के बीच में भी क्या होता है, वेरिएशन हो सकता है. ऐसा नहीं है कि दो डिफरेंट स्पीसीज़ के बीच में ही वेरिएशन होगा. सेकेंड वन इज़ दैट सम मेंबर ऑफ स्पीसीज वेर बेटर सूटेड टू द एनवायरमेंट देन अदर्स. ओके, now talking about that Darwin's notice. So whenever we are focusing on the Darwin finches are various famous example. Okay, so he noticed that in the Galapagos tapu there are several types of finch varieties are found because of their diet plants are different. Okay, so some are the green warblers, some are the large ground finches because of that different types of diet. Several other examples also. Like that Darwin's also observed the variation in the characteristic of the tortoise in Galapagos. उन्होंने इतना ही नहीं देखा था फिंचेस के बारे में, उन्होंने दूसरा भी एक एग्जाम्पल नोटिस किया था, और जो है कि अगर हम गैलापागोस टापू पर गए थे तो वो उन्होंने नोटिस किया कि टॉर्टोइस की भी कुछ वेरिएशंस है. कैसा वेरिएशंस है? तो कुछ टॉर्टोइस के अंदर नेक जो है वो लॉन्ग था, किसी के अंदर शॉर्ट था. तो शॉर्टर नेक और लॉन्गर नेक ऐसा क्यों रहा है उसके बारे में भी उन्होंने थिंकिंग किया था. और उसके बाद उन्होंने एक कंक्लूज़न ये निकाला था कि दोज द टॉर्टोइस विथ लॉन्ग नेक्स एंड सैडल लाइक फीचर्स इन देयर शेल्स फाइंड इट ईजियर टू लिफ्ट देयर हेड्स हाई टू ईच मोर लिव्स. ओके, तो वो उनके अंदर क्या था, लॉन्ग नेक्स थे एज वेल एज सैडल लाइक फीचर्स. उसका जो पैर था वो सैडल लाइक फीचर्स था. ओके, इन देयर शेल्स. ओके, सो दैट वो क्या कर पाते हैं, उन जितने भी ट्रीज़ होते हैं ना उसमें से वो लीव्स को क्या कर सकते हैं, वो ईट अप कर सकते हैं. सो दिस रिजॉल्व डिस्प्यूट्स ओवर लिमिटेड फूड रिसोर्सेज. ओके, सो वो फूड रिसोर्सेज कम है तो उस जगह पर सर्वाइव करने के लिए उन्होंने ये एडेप्टेशन को क्या कर लिया था, अपने अंदर एडेप्ट कर लिया था. नाउ टॉकिंग अबाउट दैट most important phenomena is the natural selection. Okay, every species contains the variations and individuals which is best adapted to the environment which has survived. Okay, they are also more likely to survive long enough to reproduce successfully, passing their successful genes on to the next generation.
Now talking about that evolution, it is very important phenomena because the evolution is defined as the changes within the species over the period of time, and it happens slowly as well as continuously due to the natural selection. Okay, evolution ऐसा फिनोमेना है कि जो स्लो हो रहा है एज वेल एज कंटिन्यूसली हो रहा है, ऐसा नहीं है कि रुक गया है, इवोल्यूशन अभी भी हो रहा है. ओके, होमोसेपियंस से भी आगे कुछ इवोल्यूशन होगा ज़रूर, ऐसा नहीं है कि वो अभी बंद हो चुका है, ऐसा नहीं है. ओके, however the large scale changes can be forced by extreme events such as earthquakes and new predators and the new disease or physical separation such as a mountain rising up or as well as the land mass breaking apart. Okay, so evolution क्यों होता है, तो उसके भी बहुत सारे यहाँ पर आपको रीजंस बताए हुए हैं कि कुछ नेचुरल डिज़ास्टर्स से हो सकता है या फिर कुछ मैन मेड एक्टिविटीज़ के कारण भी हो सकता है. सो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ दैट हॉर्स सीरीज evolution. You can see that over the past 55 million years, equine family has undergoes a series of changes. You can see that the horses are different. कैसे different हुए, तो there are having the 4 functional toe to developing a single hoof. उनमें से क्या हो गया, सिंगल हूफ आने लगे. पहले क्या था, हैविंग 3 और 4 फंक्शनल टो, उनमें 4 या 3 फंक्शनल टोज थे. देन आफ्टर वो किस में कन्वर्ट हो गया, सिंगल हूफ के अंदर कन्वर्ट हो गया. ओके, सो इवोल्यूशन ऑफ द हॉर्स आर what happens and why it is very important for that horse life, for the survival. Okay, so significant features are that the changes occur single hoofed horses which are very stronger and more efficient legs allow them to explore the wider territories and access the foods. Okay, so these are the very important feature of that single hoof on the horses. And the most famous example of the NCERT, which is called the pampered moth. ओके, पैम्पर्ड मोथ का एग्जाम्पल आए और इवोल्यूशन ना आए तो वो तो हो ही नहीं सकता. और उसके अंदर भी नेचुरल सिलेक्शन विच इज़ अ बेस्ट फिनोमेना टू एक्सप्लेन द पैम्पर्ड मोथ. ओके, सो पैम्पर्ड मोथ विच आर नॉन फॉर देयर लाइट ग्रे कलर विथ ब्लैक स्पॉट्स. ओके, तो लाइट ग्रे कलर विथ ब्लैक स्पॉट्स, हियर यू कैन सी दैट दे ब्लेंड इन विथ ट्रीज ट्रंक्स विच इज़ कवर्ड इन द लाइकेन. तो ये ट्री थी, उसके अंदर लाइकेन कवर्ड हुआ था, उस लाइकेन का कलर एज वेल एज जो पैम्पर्ड मॉथ का कलर था वो सेम जैसा था, इसलिए वो उसमें क्या हो सकता था, छुप के रह सकता है. लेकिन दूसरे जो मॉथ थे जो ब्लैक कलर के थे वो उसके अंदर छुप के नहीं रह सकता है. सो प्रीडेटर क्या करेगा, उसको खा लेगा. ओके, सो ऑब्वियसली बात यही है कि ये जो वाइट पैम्पर्ड मॉथ थे वो ज़्यादा थे एज़ कम्पेयर टू द ब्लैक मॉथ. बट जैसा कुदरत चाहती है वैसा ही होता है. तो 19th सेंचुरी के अंदर क्या हुआ कि ब्लैक पैम्पर्ड मॉथ की नंबरिंग अचानक से बढ़ गई. क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि अर्बन एरियाज़ के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन एज वेल एज कोल फायर्स से क्या होता है, पॉल्यूशन होता है. सो पॉल्यूशन से क्या हुआ कि लाइकेन्स का ग्रोथ बंद हो गया या फिर लाइकेन ग्रो होना ही बंद हो गई. सो क्या हुआ कि ये जो ट्री थी उसके अंदर पॉल्यूशन के कारण ब्लैक कलर का पूरा एक ट्री के जो ट्रंक रीजन पर ऐसा पूरा का पूरा ब्लैक हो चुका है. तो अब ब्लैक पैम्पर्ड मॉथ जो है उसकी जो नंबरिंग है वो बढ़ गई एज़ कम्पेयर टू द वाइट मॉथ. क्यों ऐसा हुआ कि प्रीडेटर जो है वो वाइट मॉथ को क्या करेगा, खा लेगा. क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है, उसको जो छुपने की जगह थी वो अब नहीं रही, इसीलिए ब्लैक मॉथ की जो नंबरिंग है वो बढ़ चुकी है. नाउ अभी 20th सेंचुरी के अंदर एक ऐसा लॉ आया है कि जिसके अंदर एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल में लाया गया है. सो कंट्रोलेशन से वापस से क्या हुआ है, वाइट मॉथ की जो नंबरिंग है वो बढ़ चुकी है बिकॉज ऑफ द लाइकेन्स आर ग्रो in that particular period and black moths are numbering is low. So I hope you are the pampered moth clear on their in their mind. Now talking about that another evolutionary phenomena, अब तक हमने जो देखा था वो गाइस कैसा था कि हम बात करें कि इवोल्यूशन जो है ना वो पर्टिकुलरली ऐसा नहीं होता कि एक ही एनिमल्स के अंदर ही होगा, ऐसा नहीं है. वो पर्टिकुलरली बहुत सारे ऐसे प्लांट्स के अंदर भी देखा गया है. सो टॉकिंग अबाउट द प्लांट्स,
learning on the checking several types of plants which is having the evolutions. So here you can see that the clover plants which having some of the mutations like that which contains a cyanide poison in their cells. Okay, this makes the taste bitter, making them less likely to be eaten. ओके यानी कि कोई भी उसको खाए नहीं, इसीलिए उसने क्या किया, उसके सेल्स के अंदर साइनाइड को क्या कर दिया, उसने स्टोर कर लिया, जिसके कारण जो भी उसके ऊपर जो भी उसका प्रीडेटर था वो क्या करने लगा, अब उसको अवॉइड करने लगा, क्योंकि उसके अंदर साइनाइड है, उससे क्या हो सकता है, उसकी डेथ भी हो सकती है, एज वेल एज वो टेस्ट में भी अच्छा नहीं है, इसीलिए उन्होंने क्या कर दिया, उसे एस्केप कर दिया। बट क्या हुआ कि साइनाइड जो है ना वो प्लांट को भी किल कर रहा है। किस जगह पर, कि जब हम बात कर रहे हैं कि कोल्ड टेम्परेचर के अंदर, यानी कि कोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर क्या हो रहा है कि जो साइनाइड है ना वो क्या कर रहा है, प्लांट्स को फ्रीज करवा रहा है। ओके, बट द वार्मर क्लाइमेट्स के अंदर ये जो क्लोवर लीफ प्लांट्स है वो अच्छे से ग्रो कर पा रहा है, क्योंकि उसके अंदर साइनाइड जो है वो फ्रीज नहीं हो रहा है, सेल्स को फ्रीज नहीं कर रहा है, तो वो अच्छे से सर्वाइव कर पाएगा। इसीलिए ये प्लांट वार्मर टेम्परेचर के अंदर ही सर्वाइव कर सकता है, एज वेल एज उसका जो साइनाइड वाला जो एक्शन है, एडेप्टेशन जो है, वो भी वार्मर टेम्परेचर के अंदर ही काम करेगा। ओके, so I hope you are clearly understood the whole phenomena of the variation which are found in the small difference between individual species also, okay, as well as natural selection, how to adapt the best environment are more likely to survive, and what is the changes in the species that happen over the period of time and causing the evolution. Okay, I hope you are clearly understood the whole phenomena of that natural selection and evolution. Thank you so much for watching.